سرکار کا ایک اور بار پاکستان کا پانی بند کرنے کا ناپاک منصوبہ، سندھ طاس معاہدہ توڑنے کی سازش، معاہدے سے متعلق درخواست ناقابل سماعت ہے، بھارتی سپریم کورٹ کا بھی ٹکاسا جواب۔ بھارت نے پاکستان کا پانی روکا تو بین الاقوامی امن خطرے میں پڑ جائے گا، ماہرین کہتے ہیں پانی پر جنگ بھی شروع ہو سکتی ہے۔ بھارت کشمیر کا تاریخی مسئلہ حل کرنا ہی نہیں چاہتا، غلط فہمیاں پیدا کر رہا ہے، حکمت عملی کے تحت معصوم لوگوں کا خون بہا رہی ہے، آرمی چیف کا جرمنی میں آرم فورسز کانفرنس سے خطاب۔ دشمن کی طرف سے حملہ ہے، وہ کئی روپ اختیار کر سکتے ہیں، ان کو یہ پیغام ملنا چاہیے پوری قوم ایک مکے کی طرح یکجا ہوگی۔ ضروری نہیں ہے یار دشمن فوجی پیش قدمی یا گولہ باری کرے، حملے کے لیے کئی روپ دھار سکتا ہے، سڑکوں پر موجود سیاسی جماعتیں وقتی طور پر احتجاج ایک طرف رکھ کر دشمن کو متحد ہونے کا پیغام دیں۔ بھارت کی مکاری، دنیا کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کی ناکام کوشش، مذاکرات کے لیے کوئی شرط نہیں رکھی، وزیر خارجہ کا جنرل اسمبلی اجلاس میں جھوٹ سے بھرا خطاب، کشمیر پر قابض رہنے کی ہر دھرمی برقرار، فیکٹ فائنڈنگ کمیشن بھیجنے پر خاموشی۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج کا ظالمانہ تشدد، متعدد زخمی، 150 گرفتار۔ تم 18 فوجیوں کی ہلاکت نہیں بھول سکتے، ہم لاکھوں شہادتیں کیسے بھول جائیں؟ علی گیلانی کا مودی سے سوال۔ کشمیر بنے گا، نعرہ تکبیر، پاکستان، پاک فوج، پاک فوج۔ بھارت کو منہ توڑ جواب دینے کے لیے پاکستانی قوم سڑکوں پر، کشمیریوں اور پاک فوج سے اظہار یکجہتی کے لیے کراچی سے خیبر تک مظاہرے، خواتین اور بچے بھی پیش پیش۔ وزیر اعظم نواز شریف نے اقوام متحدہ میں کشمیر کا مقدمہ پیش کر کے دل جیت لیے، مسئلہ کشمیر حل ہونے پر برہان وانی کو بھی بھگت سنگھ کی طرح آزادی کا ہیرو کہا جائے گا، والد مظفر وانی کا انٹرویو۔ کراچی کے بعد کپتان کا مشن لاہور، رائبرنڈ مارچ کی تیاریاں، 30 ستمبر کے بعد خاموش نہیں بیٹھیں گے، روکا گیا تو سخت رد عمل سامنے آئے گا، طاہر القادری کی ناراضی پر عمران خان کا دلچسپ تبصرہ۔ میں یہ نہیں جانتا کہ ناراضگیاں کیا ہے، میں کوئی رشتہ تو نہیں لینے جا رہا، میں تو انوائٹ کر رہا ہوں دھرنے کے لیے لوگوں کو، ملک کا مسئلہ ہے تو نہ پتہ نہیں ناراضگی کس چیز کی ہے، ساروں کو دعوت ہے پھر سے۔ سینٹ میں پاناما لیکس کی تحقیقات کا بل پیش، بحث کے لیے قائمہ کمیٹی کے سپرد، ایوان نے متحدہ بانی کے خلاف قرارداد بھی متفقہ طور پر منظور کر لی۔ پاناما لیکس پر سندھ اسمبلی میں پیپلز پارٹی کی قرارداد منظور، تحریک انصاف کی مسترد، وزیر اعظم اور ان کے خاندان کے خلاف غیر جانبدارانہ تحقیقات کا مطالبہ۔ آپ کو برا لگتا ہے اس علاقے میں آنے پر، آپ چلے گئے ان کے گھر پر، اگر یہ راستہ آپ نے دکھائے تو پھر آپ بھی برداشت کریں۔ جی یہ میرا خیال ہے کہ بلاول صاحب آپ کو مایوس نہیں کریں گے۔ سیاسی لوگوں کو گھروں پر احتجاج کا راستہ نواز لیگ نے دکھایا، اب برداشت کرے، پیپلز پارٹی کی تنقید، مولا بخش چانڈیو کہتے ہیں نئے پاکستان کی بنیاد ذوالفقار بھٹو نے رکھی تھی۔ کپتان کی پریس کانفرنس میں ہنگامہ کرنے والی خاتون کی پکار نون لیگ نے سن لی، پرویز رشید کی معاملہ حل کرنے کی یقین دہانی، خیبر پختونخوا میں انصاف کہاں ہے، عمران خان سے سوال۔ پی پی 7 ٹیکسلا میں ضمنی الیکشن، نواز لیگ کے امیدوار کو برتری، حامیوں کا ڈھول کی تھاپ پر رقص۔ آرنج لائن منصوبہ، سپریم کورٹ میں پنجاب حکومت کی اپیل سماعت کے لیے منظور، 5 رکنی لارجر بینچ بنانے کا حکم،
चीन ने मंसूबे के लिए 3 अरब 63 करोड़ की एक और किस्त जारी कर दी। अबे जब राह ही नहीं रहेगी तो एजेंट कहाँ से रहेंगे यार। रॉक एजेंट्स के बारे में सवाल पर फारूक सत्तार का दिलचस्प तबसरा। नदीम नुसरत से मुतालिक जवाब के लिए अगली किस्त के इंतजार का मशवरा। मेयर जेल में कराची का निजाम अब डिप्टी मेयर चलाएगा। नोटिफिकेशन जारी। बल्दिया उज़्मा ने फंड्स की कमी पर कचरा उठाने से माजरत कर ली। तहरीके इंसाफ छोड़कर एमक्यूएम में आने वाले अमजदुल्ला खान की एक और कलाबाजी। मुत्तहदा पाकिस्तान से भी लाताल्लुकी। लंदन वालों से मोहब्बत की पींगे बढ़ा ली। इस्लामाबाद में सड़क पर पड़े बैग से लड़की की लाश बरामद होने का मुअम्मा। गुत्थियां सुलझने लगी। 26 साल अनम का ताल्लुक खारिया से निकला। दुबई में ब्यूटी सैलून चलाने का इंकशाफ। बुलेटिन का आगाज करें और आपको बताएं कि आर्मी चीफ ने जर्मनी में यूएस सेंटकॉम के तहत चीफ्स ऑफ स्टाफ्स और आर्म्ड फोर्सेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया है। आर्मी चीफ ये कहते हैं कि भारत मसला कश्मीर हल नहीं करना चाहता। कश्मीर का मसला हल ना होने से गलतफहमियां पैदा हो रही हैं। आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ ने अपने इस खिताब में कहा है कि मसला कश्मीर हल न होने से तनाज़ात में इजाफा हो रहा है। रॉ बिल वास्ता हिकमत अमली के तहत मासूम लोगों का खून बहा रही है। आर्मी चीफ के इस खिताब ने कश्मीर का मसला हम देख रहे हैं कि डिस्कस किया गया है और यह कहा गया है कि भारत मसला कश्मीर हल नहीं करना चाहता। यह वाज़ेह तौर पर बताया गया है कि रॉ बिल वास्ता मासूम लोगों का कत्लेआम कर रही है। आर्मी चीफ की जानिब से अफगानिस्तान के हवाले से भी बात की गई और यह कहा गया कि कमजोर पाक अफगान सरहदी मामलात की वजह से मसाइल पैदा हो रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि इंटेलिजेंस शेयरिंग और इदारों के दरमियान ताउन न होने की वजह से भी मसाइल पैदा हो रहे हैं। उन्होंने दहशतगर्दी के हवाले से भी ये कहा कि पाकिस्तान दहशतगर्दी से मुतासिर होने वाला मुल्क है, ताहम दहशतगर्दी के खिलाफ मौसर इंतजामात किए जा रहे हैं। आर्मी चीफ का मजीद कहना था कि पाक फौज ने कौम की गैर मुतज़लज़ल हिमायत से दहशतगर्दों को शिकस्त दी और उनके खुफिया ठिकाने मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिए हैं। आर्मी चीफ का आर्म्ड फोर्सेस कॉन्फ्रेंस में भारत को मुंह तोड़ जवाब। मसला कश्मीर पर भारत का मकरूह किरदार बेनकाब। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज की कामयाबियों का भरपूर तज़किरा। दीगर ममालिक को पाकिस्तान के तजुर्बात से फायदा उठाने का मशवरा। ISPR के मुताबिक जनरल राहील शरीफ ने जर्मनी में यूएस सेंटकॉम के तहत कॉन्फ्रेंस में खिताब करते हुए कहा कि भारत कश्मीर का तारीखी मसला हल नहीं करना चाहता। इससे तनाज़ा संगीन और कशीदगी बढ़ रही है। भारतीय एजेंसी राह मासूम लोगों का खून बहा रही है। आर्मी चीफ का कहना था कि पाक फौज ने कौम की गैर मुतज़लज़ल हमायत से दहशतगर्दों को शिकस्त दी और उनके खुफिया ठिकाने मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिए। पाक फौज के तजुर्बात से दीगर ममालिक की अफवाज फायदा उठाएं। खित्ते में खुशहाली अफगानिस्तान के इस्तेहकाम से मशरूत है। मगरबी सरहद पर बॉर्डर मैनेजमेंट न होने से पाकिस्तान को खदशात हैं। मोहम्मद इमरान, दुनिया न्यूज, इस्लामाबाद। वज़ीर दाखिला चौधरी निसार ने भी दुश्मन के अज़ाइम से खबरदार किया है। उन्होंने कहा कि जरूरी नहीं दुश्मन फौजी कार्रवाई करे, हमले के कई रूप हो सकते हैं, कूचे कूचे पर नजर रखना होगी। चौधरी निसार ने कहा कि पूरी कौम एक मुक्के की तरह यकजा होगी तो ही दुश्मन का मुकाबला किया जा सकता है। दुश्मन की तरफ से हमला है वो कई रूप इख्तियार कर सकते हैं। उनको ये पैगाम मिलना चाहिए पूरी कौम एक मुक्के की तरह यकजा होगी। टेक्सला में मीडिया से गुफ्तगू में चौधरी निसार अली खान ने दुश्मन को दो टोक पैगाम दिया। भारत की अय्यारी को कौम पर भी अया कर दिया। दुश्मन की तरफ से जो हमला है वो कई रूप इख्तियार कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि वो बॉर्डर पे बाकायदा पेशकदमी करे या गोलाबारी करे। ये पूरी कौम एक मुक्के की तरह यकजा होगी। वज़ीर दाखिला का कहना था कि मुल्की सियासत के लिए कई साल और महीने बाकी हैं। फिलहाल दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देना जरूरी है। एहतजाज करने वाले कुछ अरसे के लिए सिलसिला मुलतवी कर दें। जो इस वक्त सड़कों पे हैं कि उनकी तरफ से कुछ लेट भी हो सकता है, कुछ मुअत्तल भी हो सकता है। पाकिस्तान के बारे में जिसके कोई गलत ख्यालात हैं, जिस मुल्क के भी गलत ख्यालात हैं,
उनको ये पैगाम मिलना चाहिए, पूरी कौम उन ऐसे अनासर का मुकाबला करने के लिए तैयार है। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। मक्कार भारत ने दुनिया की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश की है। मुज़ाकरात के लिए शर्तों से भी मुकर गए हैं, जबकि साथ साथ पाक भारत क्रिकेट पर भी सफेद झूठ बोला गया है। वजीर खारजा भारत की जानिब से अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असेंबली इजलास में खिताब के दौरान कोई एक बात भी ऐसी नहीं थी कि जिसको माना जाए। वहीं साथ साथ कश्मीर से मुतालिक बात करते हुए वही घिसा पिटा राग अलापा गया कि ये हमारा अटूट अंग है। कश्मीर में क्या हो रहा है, सुषमा स्वराज सब झुटलाती रहीं, अटूट अंग का राग भी सुनाती रहीं। कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है और अभिन्न हिस्सा रहेगा। भारतीय वज़ीर खारजा ने अपनी तकरीर में बलूचिस्तान का जिक्र किया, लेकिन वहाँ मुदाखलत कौन कर रहा है? सब बलूचिस्तान में हो रहा है वो यातनाओं की पराकाष्ठा है। और दूसरी बात उन्होंने कही कि भारत जो शर्तें बातचीत के लिए लगा रहा है वो हमें मंजूर नहीं है। समझ नहीं रही कौन सी शर्त, किस शर्त की बात की जा रही है? श्रीमती जी ने उड़ी हमले को दहशतगर्दी करार दिया। जिम्मेदार मुल्कों को अक़वाम मुत्तहिदा से निकालने का मुतालबा भी किया, लेकिन ये भूल गयी। तो भारतीय वजीर खारजा तो हर बात पर मुकर गई और उनकी तकरीर पर दफ्तर खारजा का रद्द अमल सामने आया है और ये कहा गया है दफ्तर खारजा की जानिब से कि कश्मीर भारत का हिस्सा है तो सलामती काउंसिल के एजेंडे पर क्यों है। ये भी कहा तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कि भारत की सलामती काउंसिल की करारदादों से ला ताल्लुकी हैरान कुन है, क्योंकि भारत की जानिब से और भारत की जानिब से कहा गया कि हमने पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात के लिए कोई शर्तें नहीं रखी। इस पर भी दफ्तर खारजा की जानिब से हैरत का इजहार किया गया और भारतीय वज़ीर खारजा की तकरीर पर दफ्तर खारजा का रद्द अमल सामने आया है। ये कहा गया है कि कश्मीर भारत का हिस्सा है तो सलामती काउंसिल के एजेंडे पर क्यों है। और अब बात करेंगे पानी के नाम पर दहशतगर्दी की। मोदी सरकार का एक और वार सामने आया है। पाकिस्तान का पानी बंद करने का नापाक मंसूबा सामने आया है। सिंतास मुआहिदा तोड़ने की साजिश की जा रही है भारत की जानिब से और इस हवाले से मोदी की सरबराही में एक अहम इजलास भी हुआ। पानी के नाम पर अब भारत दहशतगर्दी करने पर उतर आया है। दिल्ली में भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी की सदारत में सिंतास माहदे पर इजलास हुआ, जिसमें भारतीय सेक्रेटरी खारजा कौमी सलामती के मुशीर शरीक हुए। भारतीय मीडिया के मुताबिक इजलास में सिंतास माहदे के मुख्तलिफ पहलुओं का जायजा लिया गया। इधर साबिक भारतीय सेक्रेटरी खारजा कंवल सभाल कहते हैं कि सिंतास माहदे की खिलाफ वर्जी इंतहाई इक़दाम होगा। भारत को आलमी सतह पर गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं करना चाहिए। दूसरी तरफ भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने सिंतास माहदे की फौरी समाअत से इनकार किया है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में नवाज शरीफ ने अक़वाम मुत्तहिदा में दिल जीत लिए, ये कहना है बुरहान वानी के वालिद मुजफ्फर वानी का। कहते हैं वजीर आजम पाकिस्तान ने कश्मीर का मुकदमा मुअस्सर अंदाज में पेश किया। मुजफ्फर वानी कहते हैं कि बेटे की शहादत से आज़ादी कश्मीर की तहरीक को तक़वियत मिली। उन्होंने कहा कि मसला कश्मीर हल होने पर बुरहान वानी को आज़ादी का हीरो कहा जाएगा। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑरेंज लाइन मंसूबे पर लाहौर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल करने की पंजाब हुकूमत की अपील समाअत के लिए मंजूर कर ली है। चीन ने मंसूबे के लिए 3 अरब 63 करोड़ रुपए की एक और किस्त भी जारी कर दी है। चीफ जस्टिस अनवर ज़हीर जमाली की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने ऑरेंज लाइन मंसूबे पर पंजाब हुकूमत की लाहौर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल करने की अपील मुस्तरद कर दी। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि हकायक और कानूनी पहलुओं का जायजा लेना जरूरी है। समाअत के लिए 5 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील देने का हुक्म दिया गया। दूसरी जानिब चीन के एक्सिम बैंक ने ऑरेंज लाइन और ट्रेन के लिए 3 अरब 63 करोड़ रुपए की चौथी किस्त जारी कर दी है। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने कहा है कि 30 सितंबर के बाद भी खामोश नहीं बैठेंगे। सिर्फ जलसा नहीं खेल सकते। हुकूमत ने मार्च रोकने की कोशिश की तो शहर को बंद कर देंगे। इंडिया के मामले में पाक फौज के साथ खड़े हैं। लाहौर से रिपोर्ट कर रहे हैं लियाकत अंसारी।
رائیونڈ مارچ کی تیاریوں کے لیے کپتان کھلاڑیوں کو گرمانے لاہور پہنچ گئے. حکومت کو خوب للکارا. بولے پاناما لیکس کا ایشو دفن ہوا تو کرپشن کا ایشو دفن ہو جائے گا. 30 ستمبر کو بھی ہمیں نہ سنا گیا تو خاموش نہیں بیٹھیں گے. صرف جلسہ نہیں کھیل سکتے, اگلا لائحہ عمل دیں گے. اگر یہ روکیں گے اس کے بعد جو بھی رد عمل آئے گا میں آپ کو یقین دلاتا ہوں وہ گورنمنٹ ذمہ دار ہوگی اور رد عمل آئے گا. اگر انہوں نے روکا, ادارے بھی نہ انصاف دے, پبلک بھی پرامن احتجاج بھی نہ کر سکے. اگر انہوں نے کسی کو پکڑا میرے کارکن کو, میں خود پولیس کے تھانے کے باہر پہنچ جاؤں گا. رائیونڈ میں شرکت کی تمام اپوزیشن جماعتوں کو دعوت دی, مگر ڈاکٹر طاہر القادری کے سوال کا کپتان نے کچھ یوں جواب دیا. میں یہ نہیں جانتا کہ ناراضگیاں کیا ہے, میں کوئی رشتہ تو نہیں لینے جا رہا, میں تو انوائٹ کر رہا ہوں دھرنے کے لیے لوگوں کو. ملک کا مسئلہ ہے تو پتہ نہیں ناراضگی کس چیز کی ہے. ساروں کو دعوت ہے پھر سے. عمران خان کا کہنا تھا کہ کرپشن کے خلاف تحریک چلتی رہے گی, مگر بھارتی معاملے پر ہم پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہیں. پاکستانی فوج کے ساتھ بھی ہم کھڑے ہیں. اگر کچھ ہوا ساری قوم اکٹھی ہے, اپنی فوج کے جوانوں کے ساتھ کھڑی ہے. عمران خان نے رائیونڈ کی تیاریوں کے لیے مختلف اجلاسوں کی بھی صدارت کی اور رائیونڈ مارچ کے لیے ہدایات دیں. کیمرہ مین عمر عظیم اور شہباز حسن کے ساتھ لیاقت انصاری, دنیا نیوز, لاہور. بھارت کی سلامتی کونسل کی قراردادوں سے لا تعلقی حیران کن ہے. پاکستان کا رد عمل. دفتر خارجہ کا کہنا ہے کشمیر متنازع نہیں تو اقوام متحدہ کے ایجنڈے پر کیوں ہے. PP7 ٹیکسلا میں ضمنی الیکشن, نواز لیگ کے امیدوار عمر فاروق کی برتری, حامیوں کا ڈھول کی تھاپ پر رقص. ہم خبر آپ کو دیں, PP7 ٹیکسلا میں ضمنی الیکشن ہوا ہے. 113 پولنگ سٹیشنز کے غیر حتمی نتائج موصول ہو گئے ہیں, جس کے مطابق نون لیگ کے عمر فاروق 35,560 ووٹوں کے ساتھ اس وقت آگے ہیں. تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ ایک اور ضمنی الیکشن میں نون لیگ نے میدان مار لیا ہے. 35,000 سے زائد ووٹ حاصل کیے ہیں نون لیگی امیدوار عمر فاروق نے, اور حامی یہاں پر جشن منا رہے ہیں, ڈھول کی تھاپ پر رقص کر رہے ہیں. جبکہ تحریک انصاف کے عمار صدیق نے صرف 29,601 ووٹ لیے ہیں, یہ یہاں دوسرے نمبر پر ہیں.